Good morning, all of you. It's our third day for collaborated with Federation Community Radio Station, New Delhi. Now, I would like to introduce Dr. Kishore Kumar, our special guest and speaker. Dr. Kishore Kumar is an associate professor of history at KM Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Budh Nagar, India. He has done his Masters of Arts in History and thereafter a PhD degree with a thesis on concept of political representation in Indian system from CCS University, Meerut, UP, India. To enhance his marginal skills, he has done post-graduation diploma in management from IMT Ghaziabad. He has an additional charge of director Swami Vivekananda Study Center, sponsored by UGC Grant Commission, New Delhi, at KM IM Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Budh Nagar. He has been extensively involved in philosophical research, especially Vedanta, Jainism, Buddhism, since 2002. He started his career as an assistant professor, Government Postgraduate College, Fatehpur, during his stint from 2nd January 2002 to 28th June 2008. He has supervised many research dissertations on themes like Gandhian philosophy, the contribution of women in the Indian national movement, rise of communalism in India, Gandhi, social contributions. Presently in Indian national movement and changing dimensions of history geography in modern India. Extra. Dr. Kishore is an active life member of various national academic and professional bodies like Indian Institute of Public Administration, Indian Political Science Association, extra. He has authored 3 books titled Communalism in India, Past and Present, भारत में सांप्रदायिकता अतीत एवं वर्तमान, रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया, भारत में प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक न्याय, एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्किंग वुमेन, एंड edited a book, Generation Gap. He has published 9 seminar proceedings and has been associated more than 10 international national journals as editor-in-chief, editor, member of editorial board, advisor and reviewer. He has successfully completed 2 major and 1 minor research projects sponsored by UGC and ICSSR. He has pursuing a research proposal, historical and cultural continuity of Jammu and Kashmir as co-investigator with University of Jammu. Dr. Kishore has more than 30 publications in research journals to his credit. He has delivered more than 40 lectures as keynote speaker, resource person, extra, and presented about 50 research papers in international national conference separately, and he has taken his academic acumen to Mount, Germany, where he carried a technical session in an international conference and Austria in a academic tour. In the capacity of convener, co-convener, member of organizing committee, he has organized more than 30 seminar, webinar, workshop on diverse topic of history, philosophy, humanities, ancient wisdom and ICT extra. 7 PhD scholars has
been pursuing research in has been submitted his research work to the University Grant Commission, New Delhi, in his mentorship. In his career of more than 18.5 years, he has not only done teaching and qualitative research work, but has also a part of college administration. He has worked as convener, co-convener, and member of different college communities, namely NEC, S, RUSA, UGC, etc. He has been completed with ICCR New Delhi as a professor, chair Indian Studies Center Board. Then I would like to invite Dr. Manoj Azidia, Kanodia B.Ed College Principal, to welcome the guest. Good morning. Namaskar, sir. Kanodia B.Ed College. कनोडिया चैरिटेबल सोसाइटी के आभार। कनोडिया चैरिटेबल सोसाइटी के चेयरमैन श्री बाबू श्री के कानोडिया व मैडम उर्मिला कानोडिया का आभार व्यक्त करती हूँ। उनके संपूर्ण परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो समय समय पर आकर हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। चैरिटेबल सोसाइटी के सेक्रेटरी बीके नौलखा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज के हमारे कनोडिया B.Ed कॉलेज के कोलैबोरेशन में फेडरेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली का भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारा सहयोग किया। इनके सीईओ डॉक्टर डिंदन स्वागत करती हूँ और सर से आज निवेदन करती हूँ कि यहाँ भी थोड़ा समय दें क्योंकि इनके पैरेलल में कई प्रोग्राम चलते रहते हैं। प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय टीटी कॉलेज शिकर का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि समय समय पर हमें सहयोग देते रहते हैं। आज का जो अपना तीसरा दिन है इस इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और तीसरा जो भारतीय शिक्षा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण और आने वाले समय में इसकी जो संभावनाएं क्या क्या हैं, जिस पर हमारे जो मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर किशोर कुमार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी उनका जो परिचय दे दिया गया है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शायद ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है देश की जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक और 676 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षार्थियों को भी जोड़ा गया है, अध्यापकों को, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक के 2 लाख से अधिक सुझावों पर मंथन करके जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको साकार किया है और इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन होके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसको क्यों, इनकी जो मुख्य बातें हैं वो जो आज सर बताएंगे कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया गया है, ये इसको किस प्रकार कारगर साबित किया गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो आपसी सहमति और जो भी इसके सामने चुनौतियां आती हैं, जो भी इनके सामने जो विवादास्पद कोई विषय आता है, तो उस पर आपसी सहमति के द्वारा ही कुछ उचित सुझाव लिए जाएंगे। यह पॉलिसी जो है 2022 या 23 से लागू करने का जो अभी प्रस्तावित है, उस समय तक जो भी शिक्षाविद है, जो भी राज्य सरकार है, उनसे सुझाव और जो परामर्श के लिए मार्ग है वो हमेशा के लिए खुले रखे हैं, ताकि आने वाले समयों में इसका जो क्रियान्वयन है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से कोई भी बाधाएं उसमें नहीं आए। तो मैं डॉक्टर किशोर कुमार जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो हमारे जो पार्टिसिपेट्स हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उनसे अपना जो है विचार जो है वो शेयर कीजिए और विचार विमर्श कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। रियली मतलब ये बहुत ही प्लेजर की बात है कि आप लोगों से मेरा संवाद हो रहा है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आपके महाविद्यालय को विजिट किया है कुछ वर्ष पहले और एक बहुत अच्छा एम्बियंस आपके महाविद्यालय में है और आपकी जो प्रशासिका हैं जो उसको लीड करती हैं, उनकी सरलता और उनकी योग्यता दोनों को मैं एडमायर करता हूँ। कनौरिया बीएड कॉलेज मुकुंदगढ़, झुंझुनू, राजस्थान, जो 1 वीक की एफडीपी ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्यूचर रोड मैप फॉर द एजुकेशन इन इंडिया। तो मैं ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर मनोज झाझरिया जी, चेयरपर्सन श्री के कनौरिया जी, सेक्रेटरी श्री BK नौलखा जी और रेस्पेक्टेड फ्रेंड प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रिंसिपल हैं भारतीय बालिका टीटी कॉलेज सीकर के, और अपने मित्र प्रोफेसर डॉक्टर DP सिंह, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अदर पैनलिस्ट, टीचर फ्रेटर्निटी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, and dear scholars and students. Today we will talk about internationalization of Indian education system, the perspective in the context of new education policy 2020, and we will talk about new education policy in general too. मैं आपको कोई नई बात नहीं बताने वाला। एक तो आप 2 दिन से इतने विद्वान हो चुके होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कि आपको बेहतर समझ होगी उसकी, क्योंकि 2 दिन से आप सोच रहे हैं और आज ये 3रा दिन है। तो मैं आपको कोई यूनिक चीज नहीं बताने वाला। हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो सकता है, कुछ उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कुछ उसकी बातें एनालाइज जो कर रहे हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन आप लोग जितना सुन चुके हैं वो मोर देन एनफ है आपकी नॉलेज के लिए। और सब आप बड़े स्कॉलर्स हैं, सभी आप बेहतर समझ रखते हैं, चीजों को एनालाइज करना जानते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी अब ये करने वाली क्या है? We all know that new education policy which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, ये रिप्लेस करेगी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को और नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। पॉलिसी स्ट्रक्चर्ड हो चुकी है, लेकिन अब उसकी चुनौती क्या है? अब चुनौती है उसे इम्प्लीमेंट करने की। और कहा जाता है कि इंडियंस आर द बेस्ट पॉलिसी मेकर इन द वर्ल्ड बट दे स्टैंड नोवेयर इन एग्जीक्यूशन, कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उन्हें लागू करने में अभी हमें काम करना है, अभी हमें मेहनत करनी है। कहा जाता है स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी 2 चीजें हैं। जैसे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे और उसमें सारे नए डायनामिज्म लाए, सारे रिलेवेंट डायनामिज्म लाए, लेकिन जब किसी पॉलिसी को लागू किया जाता है और उसे बनाया जाता है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर भी चेंज करनी पड़ती है। अभी तक गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर क्या है कि MHRD को हमने बदला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, UGC को हम ट्रांसफॉर्म करने की स्थिति में कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाएगा, और वो कमीशन कैसा होगा? ऑटोनॉमस होगा और उसको लीड करेंगे हमारे कैबिनेट मंत्री जो कि एजुकेशन को लीड कर रहे होंगे, और उसमें पूरे देश के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसकी ऑटोनॉमी होगी। वो ब्रॉड एक अम्ब्रेला टर्म होगी इस देश की पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक बड़ा डायनामिज्म क्या है कि हमने स्ट्रेटेजी यानी कि प्लान जो बनाया उसके लिए स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहे हैं। और कहा जाता है कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी 2 पैरों की तरह हैं कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमारी स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी भी ठीक होनी चाहिए। रणनीति यानी पॉलिसी भी और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना भी। संरचना मान लो जिस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है, जो आप सुन चुके हैं, उसका सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य क्या है हमारा? वो है द परस्यूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और ज्ञान के भी फिर आगे आती है प्रज्ञा यानी कि विजडम, और फिर आता है ट्रुथ, हाइपर ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं इसमें कई बार कहता हूं कि जैनिज्म को जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी जाना है और जो भी शायदवाद को थोड़ा सा समझते हैं, वो ये जान लें कि एब्सोल्यूट ट्रूथ बड़ा होलिस्टिक होता है और उसे समझने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। उसे समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए,
बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकें। तो जब एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त करना है, और एब्सोल्यूट ट्रूथ में एक लाइन आ जाती है कि सबसे पहले खुद को जाना है, हु एम आई। होपफुली आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज ठीक पहुंच रही है, दैट्स गुड। तो हमारी जो इस एजुकेशन पॉलिसी, एक खास बात देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी मेंशन कर रही है कि आपको परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए, प्रज्ञा के लिए, ट्रुथ के लिए, हाइपर रियलिटी के लिए, एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए, साल्वेशन के लिए, हु एम आई के लिए बात करनी है। यानी कि पॉलिसी केवल एजुकेशन के द्वारा केवल शिक्षा की बात नहीं कर रही, बल्कि वो अल्टीमेट गोल जो इनर पीस है उसकी बात कर रही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिसी। तो उसकी बात कर रही है। मैं कह रहा था आपसे कि शायदवाद रिलेटिव ट्रुथ की बात करता है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ कहता है कि तब प्राप्त होता है जब हमारा विजडम सर्वोच्चता पर पहुंच जाए, जब हमारी दृष्टिकोण इतना बड़ा हो जाए कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपनी एज, अपने जेंडर, अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी, अपने रीजन में बंधे रहते हैं। तो इन सबसे ऊपर उठकर एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जाने लगे, उसकी बात करता है। हु एम आई की बात करता है, यानी कि आप खुद को जान सको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सके आपको, तब कोई बात होगी। अब बात करते हैं, जैसे हम कहें कि अब हु एम आई या फिर हाइपर रियलिटी को जानने के भी अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे कहा जाता है सनातन धर्म में, तो कहते हैं कि ये जग जो है वो मिथ्या है, यानी कि माया है, और अल्टीमेट क्या है, साल्वेशन पाना है आपको, इससे मुक्त होना है। तो शिक्षा भी मुक्ति देती है। नेल्सन मंडेला ने कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड। और विवेकानंद बिल्कुल एकदम, जो विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा पर हजारों लाखों कोट हैं और बड़ी यूनिक हैं, हर कोई यूनिक है, लेकिन जो बात विवेकानंद कहते हैं वो बहुत यूनिक है, और मैं विवेकानंद को पढ़ता और पढ़ाता हूं। तो विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन और इन द ह्यूमन बीइंग। यानी कि शिक्षा जो है वो आपके अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनको प्रकटीकरण करती है। यानी कि टीचर, बीइंग ए टीचर, मैं अपने स्टूडेंट को कुछ भी बाहर से नहीं देता, बल्कि एक ऐसा माहौल देता हूं, ऐसा एक एनवायरनमेंट देता हूं जिसमें उसकी पर्सनैलिटी में जो तत्व अच्छे मौजूद हैं वो फ्लरिश करने लगे। जैसे एक बीज के अंदर अनंत शक्तियां मौजूद हैं, और जैसे ही उसे खाद, पानी और एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वृक्ष एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जो फल, छाया और प्रकृति को अनंत चीजें देता है। तो ऐसे ही हर स्टूडेंट के अंदर असीम क्षमताएं छुपी हुई हैं। हमें बीइंग ए टीचर एक बड़ा रोल मिला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टीचर इसके सेंटर में है। एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में टीचर सेंटर में है, और उसका काम होगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिव तरीके से लागू करे, इफेक्टिव तरीके से उसको सही रूप में इम्प्लीमेंट करे। तो टीचर क्या है? टीचर टॉर्च बियरर भी है। टीचर उस बीज को वृक्ष बनाने का माध्यम भी है। और इसमें मैं कई बार कहता हूं कि कई बार हम सोचते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही बच्चे को पहुंचेगा। हमारे लिए बच्चे को इसमें स्मार्ट लर्निंग की जरूरत है। मान लीजिए, मैं मानता हूं कि यूजी में हम आप बच्चे को एक नॉलेज, एक कम्युनिकेशन, एक सब चीजें देनी होती है, लेकिन पीजी में एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, बच्चे को स्मार्ट लर्निंग की जरूरत होती है। मैंने उसे क्या किया कि एजुकेशन में मान लो पेडागॉगी पर कुछ पढ़ाया, और हिस्ट्री में मैंने क्या किया, मॉडर्न इंडिया में कोई नेशनल मूवमेंट का टॉपिक पढ़ाया, लेकिन मैंने किसी 2 किताबों से पढ़ा, और मैं चाहता हूं कि वो कम से कम उसकी फर्दर रीडिंग हो 5-6 जगहों पर, 5-6 बुक्स से, तो उसे डिफरेंट डायमेंशन मिले इंडियन नेशनल मूवमेंट के। तो मुझे उसे सजेस्ट करना है कि ये किताब आप इस पर्सपेक्टिव के लिए पढ़िए, ये किताब आप हिस्टोरियोग्राफी के लिए पढ़िए, ये किताब आप देखिए कि कैसे राइटिस्ट मूवमेंट एक बड़ा काम कर रहा है, ये देखिए कैसे लेफ्टिस्ट मूवमेंट का इसमें काम दिखता है। तो इस तरह से जब चीजों को दिखाने के लिए मैं उन्हें डायरेक्शन देता हूं, तो मेरी टीचिंग से भी ज्यादा वो महत्वपूर्ण होता है। फिर मेरा एक काम और भी हो जाता है कि मैं यूट्यूब पर ये देखूं कि मुझसे बेहतर टीचर जो मौजूद हैं, उनके लिंक मुझे देखकर सुनने के बाद सजेस्ट करने हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनके नाम से ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि ये उनका काम है, आप इन्हें सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ उस विषय की होगी। इसकी जरूरत है। एक और बात जो परसों शायद बातचीत हो रही थी आप लोग के यहाँ बड़ी अच्छे से, और मैं बार बार बात भी करता हूं कि अभी भी स्टूडेंट के पास बहुत सारी नॉलेज है, और हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरत है इंटरनेशनलाइजेशन के लिए और एजुकेशन के लिए इटसेल्फ भी। अब कम्युनिकेशन स्किल की जैसी बात होती है तो हम इंग्लिश पे पहुंच जाते हैं। हम कम्युनिकेशन स्किल को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख ही नहीं पाते। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि जो एक स्टूडेंट के पास, एक टीचर के पास जो चीजें मौजूद हैं
जो उसके पास तत्व चिंतन है, जो उसकी विजडम है, उसको ऑर्गेनाइज करके वो स्टूडेंट को पहुंचा सके और स्टूडेंट के अंदर इतनी क्षमता विकसित कर सके किसी भी भाषा में कि वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके आपको कम्युनिकेट कर सके। बड़ा आयरनिकल है कि आज भी जब मैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जाता हूं तो मुझे कई बार क्वेश्चन रेज करने के लिए खुद को सोचना पड़ता है। बीइंग ए इंट्रोवर्ट स्कॉलर, मैं कई बार सोचता हूं कि ये क्वेश्चंस पूछना है मुझे, और कई बार मैं उसको अभी भी संकोच करने लगता हूं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड करने की और कम्युनिकेट करने की कमी है हम लोगों के अंदर। तो ये हमें स्टूडेंट को भी देनी है और खुद भी देखना है। तो ये एक जरूरत है बीइंग ए टीचर, जो कह रहा हूं मैं विवेकानंद को कोट करते हुए। अब बात करते हैं कि विश्व गुरु की संकल्पना हमने ली कि हम विश्व गुरु हैं, और मैं इसमें कोई डाउट नहीं मानता, लेकिन वो वाला विश्व गुरु नहीं जिसमें हम प्रेशर से कोई चीज बनाते हैं। इंडिया एक सॉफ्ट पावर है थ्रू द एजेस, हमेशा से एक सॉफ्ट पावर है, एंड इट विल बी रिमेन फॉर एवर, बिकॉज हमारे पास क्या यूनिकनेस है, स्पिरिचुअलिटी, धर्म का आंतरिक तत्व यानी कि आध्यात्मिकता, बाहरी वाला नहीं। बाहरी वाला तत्व हमेशा झगड़े फसाद कराता है, अंदर वाला तत्व जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी हमें जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, एनईपी इस बात को कह रही है, इनर पीस की बात कर रही है। वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, रिलीजन से नहीं मिलता। रिलीजन बाहरी आवरण है, बीज के ऊपर वाला आवरण है, अंदर वाला तत्व जो है स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें अनंत क्षमताएं छुपी हुई हैं, तो उसकी बात करता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं ये है। अब बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरत है इंटरनेशनलाइजेशन की, अंतरराष्ट्रीयकरण की जरूरत क्या है। एक छोटा सा डेटा समझते हैं, और आप लोग बेहतर जानते होंगे, बट मैंने थोड़ा सा लिया है। ऑल इंडिया सर्वे का डेटा मैं लगभग 2011 से भर रहे हैं हम सब लोग। हर कॉलेज के लिए मैंडेटरी है कि वो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का डेटा भरे। तो जब आप 2015-16 का डेटा मैं ले रहा हूं अभी, जो मेरे पास ऑथेंटिक मौजूद है, उसके बाद भी मिला होगा, और अभी मैं देख रहा था कल वेबसाइट पे, लेकिन वेबसाइट के डेटा को मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो 15-16 का डेटा है, वो कहता है कि हमारे यहाँ विदेश से जो रिकॉर्ड में स्टूडेंट्स हैं वो 45,424 स्टूडेंट आए 2015-16 में पढ़ने के लिए, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स आए अब्रॉड से, और हमारे स्टूडेंट कितने गए 15-16 में? 5.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने गए। और उसमें बड़ी कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहां जाते हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ये सब बड़ी कंट्रीज हैं जहां लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। अब सोचिए हमारा बजट का एलोकेशन कितना है जीडीपी का, एक बार अंदाजा लगाते हैं। और एक्यूरेट टर्म दे रहा हूं मैं, 2020-21 की टर्म है। हमने दिया है 99,300 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए डेडिकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। 99,300 रुपया, 300 करोड़ रुपया, सॉरी 99,300 करोड़ रुपया दिया है हमने एजुकेशन के लिए। अब इस एजुकेशन में प्राइमरी, इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन शामिल है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने 3,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है, वो इसका अलग है। अब सोचिए अब इसमें हम हायर एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं? हम करते हैं लगभग 37 या 38,000 करोड़ खर्च करते हैं हायर एजुकेशन पे। और हल्का सा आप देखिए, ट्विस्ट देखिए, अगर आप 5.5 लाख लोगों ने यदि 30 लाख रुपए पर ईयर एवरेज खर्च किया, जो हम मानते हैं इतना खर्च करता है हमारा स्टूडेंट जब ओवरसीज पढ़ने जाता है तो इतना पैसा खर्च करता है, तो इसका टर्म आती है, आप देखेंगे 1,65,000 करोड़। यानी कि हमारा जितना एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, उसका 4 गुना हमारे बच्चे विदेश में शिक्षा लेने पर खर्च करते हैं, जितना हमारा टोटल यूनियन बजट में से हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यूनियन बजट, क्योंकि मैम ने अभी बात की, कंकर्ड लिस्ट में आती है एजुकेशन। स्टेट भी खर्च करती है, सेंटर भी खर्च करती है, और फिर उसके बाद एक बजट अलग आता है। और मैं अभी बात कर रहा हूं केवल यूनियन बजट की, ठीक है। तो जितना यूनियन बजट में हायर एजुकेशन के लिए मिला, उसका 4 गुना हमने अपने बच्चों पर विदेश में पढ़ने के लिए खर्च किया। अब अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि हम दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में 100 में शामिल होते, तो हमारे वो बच्चे कम जाते या सही पैसा हमारे पास भी आ रहा होता। यानी कि हमारे पास आ रहे हैं बच्चे कितने? 45,424 और जा रहे हैं 5.5 लाख। और ये डेटा 2019-20 में, अब तो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं, लगभग 7.5 लाख था।
7.5 लाख बच्चे हमारे बाहर गए थे, मैं 5.5 लाख की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑथेंटिक डेटा नहीं था, तो इसलिए मैं 2015-16 को ही कोट कर रहा हूँ। ठीक, तो सोचिए 4 गुना हम खर्च करते हैं। अब रियलाइज कर लिया हमने कि बात बाहर बड़ी महत्वपूर्ण है, और यदि हमने ये किया तो हमारा कितना पैसा जो जैसे कहते हैं ना मनी ड्रेनिंग जा रही है। धन की निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, रमेशन दत्त ने, कि धन की निकासी हो रही है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है हमारे यहाँ से। अब देखिए, अब एक बात और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा टॉपिक पे आता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत खराब है। हमारे, आप देखिए पूरी दुनिया में जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें सब इंडियन लीड कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सिको हो, गूगल हो, सब में इंडियन लीड कर रहे हैं। अब ये उनकी बात है, उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी है, या उन्होंने डिफरेंट जगह से स्टडी की, इंडिया में भी स्टडी की, ओवरसीज भी स्टडीज की, और लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। वैसे भी हम पूरी दुनिया का 16% रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया का 16% रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा अधिकार भी बनता है। और पूरे दुनिया की हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिकन राष्ट्रपति रोजाना अपने वोटों के समर्थन के लिए भारत का, भारतीयों का और भारतीय प्रधानमंत्री को रोजाना अप्रिशिएट करता है? बिकॉज इंडियंस एक बड़ी पावर पूरी दुनिया में हैं और रेगुलर बन रहे हैं। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1991 से शुरू हुआ है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने ट्रांसफॉर्म किया है, और मोदी जी ने उसे नया एक्सपोजर दिया है, नया एक आयाम दिया है। और ऐसे ही एजुकेशन पॉलिसी भी दे सकती है। एजुकेशन पॉलिसी अब कहती क्या है? वो कहती है कि हम पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन को देंगे। यूनिवर्सल, पहली बात तो खैर यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब ही यूनिवर्सल एजुकेशन है, विश्वविद्यालय, उसका सिंपल शाब्दिक अर्थ ही वैसा जाता है। एक और बात है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल आपके पास मौजूद है। अब ये आपकी क्या हो सकती है? ये आपकी डिविडेंड भी हो सकती है और आपकी चुनौती भी हो सकती है। अगर आपने इसे सही एजुकेशन दी तो ये आपके लिए क्या है? ब्लेसिंग्स है। और यदि आपने इसे सही एजुकेशन नहीं दी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में एक बड़ी चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी, और हम वाकई अपनी जो आकांक्षाएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर में हो, चाहे एजुकेशनल मैटर में हो, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड एन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। वी नीड। अब क्या हो सकता है, इसे कैसे कर सकते हैं? ये हो सकता है कि हम उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें। अब वो कैसे हो सकती है, उसके लिए भी बाकायदा पॉलिसी बहुत एक्सप्लेन करती है। एक पॉलिसी की खास बात है कि पॉलिसी आपको पढ़ने के लिए 5000 पेजों में नहीं है, 2000 पेजों में नहीं है, 60-70 पेज के आसपास है। आप बहुत आराम से उसे ओरिजिनली पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो चीज आप ओरिजिनली पढ़ेंगे वो आप पे इम्पैक्ट डालेगी, जो भी ओरिजिनल पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों को भी ये कहिए कि ओरिजिनल पढ़ें। और कहते ना, एक और चीज कहते हैं कि बच्चों को ये मत बताइए क्या सोचें, बच्चों को बताइए कैसे सोचें, और डिफरेंट डायमेंशन उन्हें बता दीजिए। उन्हें बताइए, जैसे मान लो अगर एजुकेशन का है तो एजुकेशन का एक वेस्टर्न मेथड है वो भी पढ़ाइए, ईस्टर्न मेथड है वो भी पढ़ाइए, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज का मेथड बताइए। लेट देम डिसाइड, उनको डिसाइड करने दीजिए कौन सा बेहतर है। और जब उनके अंदर इतना प्रज्ञा आ जाएगी जो एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, तो फिर अलग तरह की दुनिया बनेगी। ठीक है, तो ये बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी की, कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी, पेपर्स में फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, और मैं तो कहूंगा मल्टी के साथ साथ ट्रांसडिसिप्लिनरी। बिकॉज अगर कोई, मान लो मैं बड़ा अच्छा देखता हूं जेएनयू में इस बात को, कि पता बड़ा एक व्यक्ति ने हिस्ट्री ऑफ सीड पे काम किया, और वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर ने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे काम किया, और हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, वो एजुकेशन हिस्ट्री पढ़ाते हैं। किसी ने काम किया लीगल हिस्ट्री पर, और वो लीगल हिस्ट्री के पेपर को पढ़ाते हैं। तो कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी स्पेसिफिकेशन है, कितना उनके पास सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ना, हमने क्या करा, अभी अब इस दुनिया को ऑलराउंडर चला रहे हैं, अभी इस दुनिया को ऑलराउंडर चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, है ना। लेकिन इस देश को जरूरत है अब विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की, ठीक है, यूनिकनेस के साथ वाली, और वो देगी एजुकेशन पॉलिसी। और जब देगी, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं उसे मैं प्यार करने लगूं, उसे मैं जीने लगूं, और मैं लर्निंग को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपना उद्देश्य बना लूं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात क्यों करता है ये? अब देखिए, जिन्होंने पॉलिसी बनाई वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं 10 साल पहले। जब मैं उनसे मिला तो वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई तो उनको जो मोमेंटो मिला, वो हम भी मंच पे थे गलती से उस दिन,
तो हमें भी कुछ मिला। उन्होंने कहा दिल्ली जाओगे, हमने कहा सर हम गाजियाबाद जाएंगे, तो बोले भाई पंडारा रोड पे मेरे घर वो मेरा जो मोमेंटो है पहुंचा दीजिएगा, मैं फ्लाइट से निकलूंगा। तो ये परमात्मा ने मुझे सौभाग्य दिया कि उनके साथ बैठ के मैंने चाय पी उनके पंडारा रोड घर पर, और मैं उनसे मिला लगभग 10 साल पहले। और आज जब उन्होंने पॉलिसी बनाई है, इतना व्यापक डेटा, जो जैसा कि डॉक्टर मनोज जी ने कहा कि पूरी देश से डेटा लिया गया और सबकी राय को सम्मिलित करते हुए उसे एनालाइज किया गया, फिर एक बड़ा ड्राफ्ट बना, फिर उसको प्रिसाइज किया गया, और आज ये केवल 60 पेज की रिपोर्ट आपके समक्ष है, जिसे आप 2 दिन में बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एग्जाम्पल है एजुकेशन पॉलिसी के जो चेयरपर्सन रहे के कस्तूरी रंगन। उनको मैं ईटी न्यूज पर सुन रहा था, बहुत देर का उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने एक बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा लोग कहते हैं भाई 6% हमें जीडीपी का देना पड़ेगा, और अभी हम खर्च करते हैं 3-4% के आसपास। तो उन्होंने कहा कि कैसे आएगा। रिपोर्टर ने कहा सर ये कैसे होगा, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल चीज लग रही है। बोले जब 50 साल पहले इसरो बना था तब लोगों ने भी यही कहा था कि हाइपोथेटिकल है कि वर्ल्ड के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च वाले व्हीकल्स छोड़े जाते हैं उसमें इसरो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रक्षेपण करता है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव। तो उन्होंने कहा 50 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि इसरो आज वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ही इंडियंस में एक बहुत बड़ी पावर है विपरीत परिस्थितियों में काम करने की। आप देखिए पूरी दुनिया में इंडियंस जाते हैं और छा जाते हैं। क्या ऐसी वजह है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं वो जेनेटिकली कहीं हमारे अंदर इनहेरिट है कि हम विपरीत परिस्थितियों में बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमें बजट के साथ साथ क्या चाहिए, थोड़ा एनवायरमेंट चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने का, और वो एक बड़ी यूनिकनेस होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे हम करके दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अभी एजुकेशन पॉलिसी को ये देख रहे हैं कि ये विश्व गुरु बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन इंडियन स्पिरिट में, इंडियन लोगों में एक ऐसी बात है जिससे लागू होगी और ये वाकई महसूस कराएगी कि 2030 और 2040 के जो हमने टारगेट दिए हैं उन्हें हम जरूर अचीव करेंगे। अब उसके तरीके, उसके साधन हमें खुद ढूंढने हैं। साधन और साध्य की बात भी मैं कर लेता हूं, एकदम जुबान पे आई बात। एक बात जरूर अपने स्टूडेंट्स को बताइए, ट्रांसपेरेंसी की बात इसमें बहुत हो रही है, और ट्रांसपेरेंसी जिस दिन आ गई उस दिन दुनिया बदलेगी रियली। देखिए अभी भी आप जानते हैं कि जितने भी सिलेक्शंस हैं, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के लिए कोट कर देता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में जब चयन होता है तो आधे चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाईकोर्ट जाते हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, बच्चे चुनौती देते हैं और दिक्कत आती है। एक और चीज आप देखिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 10-10 बार आप अप्लाई कर देते हैं, पता पड़ा शॉर्टलिस्ट नहीं होते, इंटरव्यू नहीं होते। तो इस बात को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने समझा है और उन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी स्पेशली टीचर्स के सिलेक्शन में बहुत जरूरी है। आप सोचिए, जो भी आदमी सही साधन से पहुंचता है वो वंडर करता है। जो भी आदमी, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता चाहिए, और वो किस हद तक सोचते हैं कि इसीलिए वो कभी भी हिंसक मूवमेंट को, जिसको वो सही मानते हैं जरूरी है, टिट फॉर टैट वाला है, और खुद भी डू एंड डाई 1942 में करते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि साधन और साध्य की पवित्रता होनी चाहिए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी आ गई तो भी हम इंटरनेशनली जो इतना कंपटीशन है उसको बीट कर पाएंगे, क्योंकि सही लोग सही जगह पे पहुंचेंगे तो वो वंडरफुल करेंगे। एक और चीज अब जो जरूरत लगती है मुझे, अब बात होती है कि अभी कोई फ्रांस में बैठा हुआ बच्चा इंडिया में पढ़ना चाहता है, तो मैं 2-4 बड़े विश्वविद्यालयों को तो नहीं कह रहा, जेएनयू और डीयू को छोड़ दें, तो बाकी जगह अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं है। एक छोटा सा कॉलेज है लंदन कॉलेज, किंग कॉलेज लंदन। आप अगर देखेंगे उसकी वेबसाइट पे जाके तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को भी बीट करता है। अभी मेरे एक दोस्त ने अपनी बेटी का एडमिशन वहां कराया, तो जैसे उन्होंने एक मेल ड्रॉप किया तो वहां से पर्सनली एक काउंसलर उस मेल को फॉलो अप करने लगा। सर बच्ची किस कोर्स में जाना चाहती है, आप कब, आपके लिए सूटेबल टाइम होगा, हम कब आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो इतना रेपुटेड कॉलेज है, आपका स्कोर क्या है, आपने डिफरेंट जो प्री रिक्वेजिट है उन्हें फुलफिल किया है या नहीं किया है। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप देखिए पूरा बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश दुनिया के लोगों से भरा पड़ा है। इंडिया को लोग विजिट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस बहुत कम, रेयर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है। कॉलेजों की तो अपनी समस्याएं हैं, रिसोर्सेज कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो तुरंत स्टैब्लिश करें। और मेरे समझ से
जो भी लोग कम्युनिकेशन में मास्टर्स हों, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट्स हों, उनको कॉलेजों में भी एक बाकायदा ऑफिस बनाया जाए जो कम से कम एक मेल डेडिकेटेडली ओवरसीज स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेडली बनी हो और उस पर वो रेस्पॉन्ड करें जब भी जरूरत हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान की कल्चर पे काम करना चाहते हैं, वो राजस्थान की कल्चर पर काम करने के लिए आपके यहाँ आना चाहेंगे, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड कल्चर, इतनी रंग बिरंगी कल्चर है आपकी, उसका कोई जवाब नहीं। तो आपके पास एक ऐसा साधन जरूर होना चाहिए जिससे स्टूडेंट को, ओवरसीज स्टूडेंट को कम्युनिकेशन प्रॉपर मिल सके। उसकी जरूरत है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब बात होती है एमओयूज की। आप देखिए, मान लो स्पिरिचुअलिटी पर और इंडियन स्टडीज पर और रिलीजन पर डिफरेंट काम हार्वर्ड और आपके ऑक्सफोर्ड में हो रहे हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए बड़ी कॉमन है, लेकिन उस पर ही एक फिलीपींस की यूनिवर्सिटी बाकायदा कोर्स कराती है, और मुझे खुद को मेल आता है कि आप चाहें तो इसे $150 में कर सकते हैं। एक सिंपल बात जो मैं रोजाना अपनी स्पिरिचुअलिटी में जानता हूं, उस पर एक फिलीपींस या नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी एक कोर्स कराती है और हमें पता भी नहीं रहता। और ऐसे कोर्स करने के लिए पूरी दुनिया ललायत है, क्योंकि भारत की आध्यात्मिकता के लिए, रिलीजन के प्रति उसके भाव के लिए और एक हॉलिस्टिक फिलॉसफी के लिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर हमें मानती है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक और बात है कि LMS हमारे यहाँ स्टेब्लिश नहीं है कॉलेजों में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपने जो पढ़ाया उसके रिसोर्सेज कहाँ डले हुए हैं, उससे कनेक्टिविटी कैसी है, उसको स्टेब्लिश करने की जरूरत है। कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान। मान लीजिए कनौरिया कॉलेज बीएड का कोई बच्चा अभी अपनी एक्सपर्टीज के लिए जर्मनी पढ़ने जाना चाहता है, तो एक्सचेंज प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, दो बड़े तरीके हैं उसके लिए। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो कि विदेश से आने वाले बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है और उनके लिए यहाँ पर एक माहौल बनाती है, एक एनवायरमेंट देती है। दूसरा यूजीसी की डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत इंटर के बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, या टीचर्स के लिए भी डार्ड है के साथ, जर्मनी के साथ ही उनका कोलैबोरेशन है, और डिफरेंट ऐसे यूक्रेती के साथ आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का कोलैबोरेशन है। इस तरह के कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या बहुत सीमित है। और एक बड़ी दिक्कत उसमें है कि आपके पास जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन है ओवरसीज, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन और कंसेंट मिल चुकी हो, तब यूजीसी और आईसीसीआर आपको एक उसके लिए आगे ग्रांट देते हैं या उसके लिए आपके लिए पॉलिसी रखते हैं। तो वो एक टफ काम रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे को अभी नहीं पढ़ाई जाती। एक टीचर भी नहीं जानता कि मैं किंग कॉलेज लंदन से कोलैबोरेशन करने के लिए मेल में क्या लिखूं, क्या ऐसा महसूस कराऊं कि वो मेरे साथ कोलैबोरेशन करें। तो आपको अपनी स्वॉट भी करनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को देखना है, अपनी शक्तियों को जानना है, क्या आप उनको दे सकते हैं और क्या आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और एक मेल ड्राफ्ट करना जो ऑब्जेक्टिवली हो, चूंकि वो जैसे आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनके पास भी इसी तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसमें रखते हैं और बताते हैं कि इस तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है, इंडिया के साथ हो सकता है, इंडिया के किस यूनिवर्सिटी के साथ हो सकता है, उसकी हमें जरूरत है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम अभी भी बहुत सारे, जैसे इंडियन स्टडीज सेंटर बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में, और थोड़ा सा मुझे इसलिए ज्यादा जानकारी है कि मैं उसमें प्रोफेसर चेयर इम्पैनल्ड हूँ 2018 से, लेकिन अभी तक मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला है, अभी तक स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द प्लेसमेंट, और कोरोना ने उसे और पीछे पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा मुझे उसने थोड़ी जानकारी है। अब आती है बात की कि पैरा प्रोफेशन के लिए कुछ लोग चाहिए। मान लो टीचिंग में भी आपको अपने कॉलेज में बीएड की लैब के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, तो लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होगी, आपके टीचर को, आपके प्रिंसिपल को ये बताना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटीज क्या है, और आपको उसको पूरा ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। तो इसकी बहुत जरूरत है। तो पहली चीज जरूरत है टीचर्स को ट्रेनिंग करने की, उनके ओरिएंटेशन को बदलने की, और दूसरी कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है वो भी स्किल्ड हो और टीचर को मेहनत ना करनी पड़े। दिक्कत एक और भी है कि हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी सारे काम करती है, यूनिवर्सिटीज के लोगों को छोड़ देता हूँ, तो कॉलेज में चाहे वो ग्रांट इन एड हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, डिफरेंट ड्यूटीज हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कोई और एक्टिविटी हो, वहां आपको लगाते हैं। तो अब अपने कोर में जो मैटर है, कोर आपका जो है, उसमें काम करने की थोड़ी सी कमी हो जाती है। और पूरी दुनिया क्या मांगती है? एक्सपर्टीज मांगती है। पूरी दुनिया क्या चाहती है कि आप अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में एक ऑथोरिटी हो। और ऑथोरिटी कैसे बना जाता है? मान लो मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है, अगर मुझे हिस्ट्री ऑफ टीचिंग, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं पता, तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। यदि मुझे ज्योग्राफिकली लोकेशंस का एक जर्नल आइडिया नहीं है, स्पेसिफिक नहीं, जर्नल आइडिया नहीं है, तो मैं ज्योग्राफी
के बिना हिस्ट्री को अच्छा नहीं पढ़ा सकता। यदि मुझे संस्कृत का एक सामान्य समझ नहीं है तो मैं चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में ज्यादा नहीं बता सकता। यदि मुझे स्टेट क्राफ्ट की एबीसी नहीं आती तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे मनसबदारी सिस्टम का क्या रोल है और आजकल की डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। तो मुझे क्या है, अपने विषय की इन डेप्थ, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी और बाकी विषय की एक जर्नल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे मैं इफेक्टिव टीचिंग कर सकूं और टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह मेरे पास हो जिसको मैं सही रूप से इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं मानता हूं कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी पर एक बड़ा काम ये पॉलिसी करने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेगी। ये मेरी उम्मीद है और हम सब लोग साथ मिलकर इसे बेहतर इंप्लीमेंट करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ कोशिश करूंगा आपको बताने की। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। सभी पार्टिसिपेंट्स से आग्रह करती हूँ कि सर से कोई भी क्वेश्चन करना चाहेगा तो वो कर सकता है। कोई भी पार्टिसिपेंट्स जो है वो सर से क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसा कि प्रवृत्ति नहीं है, दिमाग में अपने क्वेश्चन बनाए रखना। मैं जो हमारे FCRS के CEO डॉक्टर DP सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी 2 शब्द व्यक्त करे। इन्वेस्टमेंट है, जो क्वेश्चन करना चाहें वो अपना बना के रखें। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्यूरीज जो आपके दिमाग में है वो आप शेयर कर सकते हो। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर DP सिंह जी अपने विचार। नमस्कार। नमस्ते सर जी, आपका स्वागत आपका करूं मैं कि आपने कितनी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज करी और इतने सारे जन में इतनी एकेडमिक डिस्कशंस आपने यहाँ पर करवाई। निश्चित रूप से इनका कहीं ना कहीं सभी को लाभ मिलेगा और एकेडमिक ग्रोथ, एक बात भी अगर किसी ने ठीक से जहन में उतार ली तो ये पूरा आयोजन सार्थक है, सफल है। इसमें फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की ओर से जो भी सहयोग हो सका उसके लिए हमें खुशी है, हमें प्रसन्नता है कि फेडरेशन को यह अवसर आपने प्रदान करा। फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरे देश में जो 200 निवासी इस समय जो ऑपरेशनल कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं उनका एक संगठन है। कम्युनिटी रेडियो एक सूचना एवं प्रसारण की इस प्रकार की विधा है जो बहुत सारी तरह की जो विधाएं हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया है, जिसमें दिखने वाला मीडिया है, टेलीविजन है, ये सुनने वाला मीडिया है। और सुनने वाले मीडिया को भी हम 2-3 भाग में विभाजित करते हैं और दिखने वाले मीडिया से कहीं ज्यादा पावरफुल हम रेडियो को मानते हैं। आपने देखा होगा कि वार या इस तरह की पेंडेमिक जो सिचुएशंस होती हैं उनमें भी टेलीविजन काम नहीं आता। जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, बिजली की व्यवस्था खत्म हो जाती है, वहां पर टेलीविजन नहीं चलते, वहां पर रेडियो चलते हैं। 2 देशों के मध्य या किसी में भी इस प्रकार के अगर वॉर होते हैं वहां पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करती है। रेडियो को भी यहाँ पर हमने 2-3 तरीके की भागों में बांट सकते हैं। एक जो सरकारी रेडियो है जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर चल रहे हैं, और दूसरे एक FM, हालांकि FM टेक्नोलॉजी पर भी सरकार के रेडियो भी चल रहे हैं, पर FM को एक अलग नई टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जा रहा है। रेडियो के लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वो FM टेक्नोलॉजी है। और FM टेक्नोलॉजी में 2 प्रकार के रेडियो काम कर रहे हैं, एक कॉमर्शियल रेडियो और दूसरे कम्युनिटी रेडियो। कॉमर्शियल रेडियो जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं
वो हमसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि रेडियो को वापस सजीव करा है उन्होंने, पर जो अल्हड़ भाषा का उपयोग और एकदम जो एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में कॉमर्शियल रेडियो काम कर रहे हैं, उससे विपरीत कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक एजुटेनमेंट के सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं कि वो अपनी हर बात किसी न किसी एजुकेशन या किसी न किसी सामाजिक प्रगति और विकास की बात को साथ में लेकर और कम्युनिकेशन करते हैं। यही मूल रूप से कॉमर्शियल रेडियो और कम्युनिटी रेडियो में उनके जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग है, उसका अंतर रहता है। टेक्नोलॉजी दोनों की एक जैसी है। और ये इस समय भारत में 289 रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं और लगभग 140 रेडियो स्टेशन नए को एलओआई जारी हो चुका है। सरकार चाहती है कि हर जिले में कम से कम 3-4 रेडियो स्टेशन आए, पर चूंकि नया ये आयाम है और अभी लोगों की जानकारी में कम है, लोगों का 10-12 साल ही इसको हुआ है हिंदुस्तान में। भारत में सबसे पहली जो बात कम्युनिटी रेडियो के लिए शुरू हुई वो 2002 में हुई, जब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एयर वेव्स हैं जिन पर कम्युनिटी रेडियो काम करता है, कम्युनिटी रेडियो में सैटेलाइट का कोई नहीं रहता, रोल नहीं रहता, ये एयर वेव्स पर काम करता है। और जो एयर वेव्स हैं उनके लिए कहा कि जो आविष्कार हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, वो सारी रिसर्चेज पर पब्लिक का पैसा लग रहा है। इसलिए यदि पब्लिक वेलफेयर में कोई डिमांड करता है एयर वेव्स की, तो वो दी जानी चाहिए। और सरकार को कहा कि इसके लिए आप नियम बनाइएगा, व्यवस्था करिएगा, और कोई संस्था या कोई भी अगर पब्लिक वेलफेयर में ये एयर वेव्स मांगता है तो उनको दीजिएगा। इसको सरकार ने आगे और स्टडी करी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी 2004 में। इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने ट्रायल के तौर पर पूरे भारत में सबसे पहले अन्ना यूनिवर्सिटी में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश करा, जो सरकारी था। और प्रोफेसर श्रीधर उनके सबसे पहले फाउंडर, कम्युनिटी रेडियो के फाउंडर उनको हिंदुस्तान में माना जा सकता है। उन्होंने उस रेडियो को शुरू करा। इसके बाद में 2006 में पार्लियामेंट ने जो बहुत सारी तरह की उस पर रिसर्च करी कि आप इससे कोई कम्युनल बातें ना हो जाएं, इससे कोई व्यापारिक इसके उपयोग ना हो जाएं, तो उन सब के लिए एक पॉलिसी तैयार करी और 2006 में कहा कि आप इसके लिए कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन, किसी इंडिविजुअल को ये रेडियो स्टेशन नहीं मिलता, ये कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई सामाजिक संस्था हो या कोई शिक्षण संस्था हो, वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने 50 वाट 100 वाट तक के ट्रांसमीटर देने की बात करी। 10 से 12 किलोमीटर का एयर रेडियस दिया गया। अभी जो पॉलिसी रिव्यू हो रही है, एक जिम्मेदारी जो हमें भी इसमें मिली, जो सारे रेडियो स्टेशन की फेडरेशन बनी, उसके सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मैं भी वहन कर रहा हूँ। और उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है और कम्युनिटी रेडियोज का पक्ष वहां रखने की बात होती है, वो जिम्मेदारी निभानी होती है। अभी कम्युनिटी रेडियो की पॉलिसी वापस रिवाइज हो रही है। गवर्नमेंट ने 6 लोगों की हमारी एक कमेटी बनाई है, जिसमें एक सदस्य के रूप में लिया गया है मुझे भी। और जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की जो पॉलिसी है उसको वापस रिवाइज करके और तैयार कर रहे हैं। और उसमें ये है कि 2 वाट 5 वाट छोटे छोटे भी रेडियो स्टेशन, किसी इंस्टीट्यूशन को अपने कैंपस के लिए रेडियो चाहिए, उसको 1 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, 2 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, तो उनके लिए भी कुछ इस तरह के प्रोविजंस आ रहे हैं कि आप बजाय उस पर बड़ा रेडियो स्टेशन लगाने के आप छोटा रेडियो स्टेशन भी लगा सकते हैं। इस प्रकार का एक कार्य है। और एक बहुत अहम रोल है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी और हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जब उसका अलग अलग बाइफरकेशन जनता के सामने रखा, तब भी उन्होंने कहा कि हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शिक्षा के प्रसार में उसकी एक अहम रोल हो सकती है, उसका भी हम मदद लेंगे। और सामुदायिक रेडियो स्टेशन ने इस पेंडेमिक टाइम में जो बहुत जिम्मेदारी से जो कार्य करा है पूरे देश में, वो अपने आप में बहुत खास है। क्योंकि दूसरे जो मीडिया के जो हैं भाई बंधु, हमारे जो टेलीविजन वाले या कॉमर्शियल वाले, वो अपने टीआरपी के लिए बहुत बार इस तरह की सूचनाएं और बहुत ज्यादा एक अलग तरीके से उन सूचनाओं को प्रसारित कर देते हैं, जिससे एक माहौल अलग तरह का बन जाता है। पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन ने कहीं पर भी पूरे देश में कभी ऐसा नहीं करा और पूरी जिम्मेदारी से हर इंफॉर्मेशन को चेक करके और उसके बाद में वो डिजेमिनेट करते हैं।
इवन अभी गूगल ने भी एक पूरे देश में फैक्ट शाला एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, और उसके पूरे देश की जो 11 लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसमें भी एक प्रतिनिधि के रूप में मुझे लिया गया है। और उसमें पूरे देश में 250 इस तरह के एक्सपर्ट्स तैयार करेंगे, 250 एक्सपर्ट्स इस तरह के तैयार करेंगे कि कहीं पर भी कोई अगर गलत सूचना आती है, कोई भ्रामक सूचना आती है, तो वो एक्सपर्ट्स जो है उनका तत्काल वहीं पर उनको चेक करके और लोगों को बताएं कि ये सही है या गलत है। आप लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका सोर्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, आप भी उसमें अप्लाई करिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो गूगल अपने खर्चे पर आपको ट्रेनिंग देगा। अभी वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है, डाटा लीड्स यहाँ पर हेड कर रही है हिंदुस्तान में, और उस प्रोजेक्ट में भी आप शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार हम एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं माने कि सिर्फ किताब में जो पढ़े हैं वो ही एजुकेशन है। एजुकेशन की 2-3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो खासतौर से जो हम टीचर एजुकेटर्स हैं उनके लिए, कि हम क्लासरूम टीचिंग करवा रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ कि एक टीचर का 1/3 रोल है, कि वो क्लासरूम में जो टीचिंग करवा रहा है वो उसका सिर्फ 1/3 रोल है। उसके बाद में उसका 1/3 रोल होता है कि वो कुछ नया खोजे, जो है उसमें संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को मैं अच्छा टीचर नहीं मानता, कि जो है उसी में जो संतुष्ट होकर बैठ जाता है वो अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अच्छा अध्यापक हमेशा विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति ही होता है। जो है उसमें संतुष्ट नहीं होने वाला व्यक्ति ही अच्छा अध्यापक बन सकता है। वो ही रिसर्च करेगा, वो ही नया रास्ता दिखाएगा। ये उसकी दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी है कि जो उसके दिमाग में नयापन आता है उसका मैक्सिमम लोगों तक डिसेमिनेशन करे, उनका एक्सटेंशन करे, और एक्सटेंशन के उसको तरीके आते हों, इन तरीकों को भी उसको उपयोग में लेना आता हो। जैसे सोशल मीडिया है, जैसे कम्युनिटी रेडियो है, जैसे अखबार पत्र पत्रिकाएं हैं, अपने थॉट्स को आप लिखें, अपने थॉट्स को आप किसी भी मीडिया से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो 1/3 जिम्मेदारी हमारी उसके एक्सटेंशन की भी होती है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है पर मैंने किसी को नहीं बताया, वो मेरे साथ ही चला जाएगा। और ऐसा हमारे देश के साथ में ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने बहुत सारी रिसर्चेज हमारे पुरखों ने करी, पर आज भी हम देखते हैं वो फला व्यक्ति के पास में एक दवाई है पर वो बताता नहीं वो है क्या। डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा लोगों ने। तो ये डॉक्यूमेंटेशन और उसके एक्सटेंशन के अभाव में हमारी बहुत सारी चीजें बैक हो गई। हम डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटेंशन पर भी उतना ही ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारी जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो ज्यादा सार्थक और ज्यादा कारगर होगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेवल पे कभी भी आप अगर किसी भी पॉलिसी का अध्ययन करेंगे तो कभी कमजोर नहीं लिखी जाती है। अगर हिंदुस्तान लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी को भी ठीक से एग्जीक्यूट कर देता, मेरी समझ दुनिया में नंबर 1 होता। मैकाले को चाहे हम कुछ भी कहें कि साहब वो हिंदुस्तान में ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति था जिन्होंने नेशनल लेवल पर एजुकेशन की पॉलिसी बनाई, और पहली बार सरकार को कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा का विस्तार करना। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार को जिम्मेदारी और अपने बजट में प्रोविजन करने पड़े मैकाले के उस डॉक्यूमेंट को लागू करने के लिए। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपने आप में कोई खराब नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन उसका इम्पोर्टेंट होता है। हम भी एनईपी के लिए जो वे रिकमेंडेशंस और जो चीजें आई हैं वो बहुत अच्छी हैं, पर उनको हम किस रूप में एग्जीक्यूट करते हैं, उनको किस रूप में हम लागू करते हैं, हम किस रूप में उनको लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज अगर नई चीजों से हम नहीं जुड़ेंगे, इतिहास में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगल जब भारत में पहली बार आए तो हमारे ही घर में हम देखते हैं कि हमारे घर में हम बाहर से कोई व्यक्ति अगर आके हम पर अटैक करता है तो उससे कहीं ना कहीं हम मजबूत स्थिति में होते हैं। बाहर वाले व्यक्ति के पास में उतने साधन नहीं होते जितने हमारे पास घर में होते हैं, किंतु फिर भी बाहर वाले कम संख्या में होते हुए भी हम ज्यादा हैं, घर में ज्यादा पावर है हमारे पास में, फिर भी हार जाते हैं। इसकी वजह टेक्नोलॉजी है। जो इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ, क्योंकि वो बारूद को पहले जान गया था इसलिए वो जीत गया। लोदी अपनी तलवार ही चलाता रह गया। इसलिए टेक्नोलॉजी के जो संपर्क में जो ज्यादा आएगा, पहले आएगा, वो जीतेगा, और जो टेक्नोलॉजी से दूर रहेगा वो पीछे रहेगा। इसलिए जो टेक्नोलॉजी के नए तरीके हैं उनको जानना, उनको अपनाना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है।
ये आपकी वेबिनार बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हो रही है, और निश्चित रूप से हम ये सारे जितना आपका जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं, इसके रेडियो प्रोग्राम बना के हम सारे जितने 289 रेडियो स्टेशन हैं उन सबको भी स्प्रेड करते हैं और उन सब तक भी जाता है। ये वेबिनार और अच्छी हो, मेरी शुभकामनाएं और सहयोग बिल्कुल है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे जो कल के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर यशी जैन मैम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैम का आभार व्यक्त करती हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो लखनऊ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका टेक्निकल सेशन कल चलेगा। जैसे बच्चे आजकल स्ट्रेस में रहते हैं और ये जब नया बदलाव आया है तो ये स्ट्रेस वाली बात स्वाभाविक ही है, तो मैडम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो सर बोल रहे थे कि जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, वाकई में वो हर जो भी पद्धति आती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। और ये भी जो ये पॉलिसी आई है दरअसल में ये भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही है जिसमें सरकार ने शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में क्या विजन है वो देखा गया है तथा शिक्षा में दिशा और दशा तय करनी है। यानी जो 5+3+3+4 जो ये पहले जो 10+2 स्कीम चला करती थी, अब ये आ गई 5+3+3+4 जो विदेशों में जैसे अमेरिका और यूके में पहले से भी चल रही है। और मेरे ख्याल से अगर ये सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाएगी तो अपने राइट टू एजुकेशन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करता है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 3 साल से 18 साल के बच्चों की बात करने लग गया है। तो इस दौरान कुछ बच्चे हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं, चैटिंग बॉक्स में उनकी कुछ क्यूरी आई है। ये अमित कुमार चौहान जी हैं जो अपना जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो अपना जो है माइक ऑन करके और अपना जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से पूछे एक बार। अमित कुमार चौहान जी। यस मैम। हेलो। हाँ बोलो बोलिए। सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो मतलब एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, ऐसी बात इसमें हो रही लग रही है कि मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है ना उनको शायद नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका शायद विरोध हो रहा है। नहीं, जो मतलब न्यूज चैनल में आ रहा है कि इसका विरोध किया जा रहा है बहुत ज्यादा। मैं कुछ बोलता हूँ इसमें। देखिए अभी इस तरह का तो कुछ भी नहीं है कि पुराने जो शिक्षित लोग हैं उन्हें कोई चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है। अभी तो 2 साल बाद ये लागू होगी और 2030 में उम्मीद करते हैं कि ये सही तरह से अपना एक स्वरूप ले पाएगी, है ना। तो अभी हमारे पास लगभग 10 साल हैं। तो पुराने लोगों को फियर ऑफ चेंज होता है, हमेशा फियर ऑफ चेंज होता है। आपको जरा सा घर बदलना हो तो अभी चेंज है, अगर आपको जरा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो तो फियर ऑफ चेंज है ये केवल, और ये एक्चुअल नहीं है, तर्क रहित है। अगर कोई चुनौती हो सकती है तो कहाँ हो सकती है वो भी मैं बता देता हूँ। पॉलिसी हमेशा बनती है आदर्श रूप में, उसे लागू किया जाता है जिस तरह से उससे फर्क पड़ रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, लेकिन उसे लागू करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी थी। आपने वो कितनी इफेक्टिव बनाई, कितना वो एग्जीक्यूट कर सकी, केवल कॉन्स्टिट्यूशन एक आधारभूत ढांचा है। अब उस ढांचे के आधार पर आपको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनानी थी, आपने वो कितनी इफेक्टिव बनाई। तो ये एक आधारभूत ढांचा है, जैसा मैम कह रही हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, ये एक तरह का नीति निर्देशक तत्व है हमारे पास। इसके आधार पर हम कुछ उनको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रक्चर, कुछ नियम बनाएंगे, वो लीगल प्रोविजन रखेगी, उनकी लीगल पावर होगी। इसकी लीगल पावर नहीं है, ये तो एक तरह का निर्देशक तत्व है जिससे हमें डायरेक्शन दे रहा है कि हमें ऐसी चीजें बनानी है। तो जो कुछ इसमें लिखा है बड़ा आदर्श है। अब इसको लागू करने का काम हमारा है और हम सभी स्टेक होल्डर का है, केवल पॉलिटिकल लोगों का नहीं है, केवल टीचर्स का नहीं है। टीचर उसके सेंटर में है और सारे स्टेक होल्डर यानी कि जो सोसाइटी है, जो आपके पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब मिलके हम इसे बदलेंगे। तो ऐसा फियर ऑफ चेंज है, ये ऐसा विरोध नहीं है। विरोध को लेकर कुछ तत्व हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। पहला तत्व है कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने होंगे। तो थोड़ा सा ये डर है कि कल को हम लोगों से कहा जाए
कि आप खुद रिसोर्स जनरेट करिए, तो वो एक थोड़ा सा चुनौती हो सकता है। एक दूसरा हो रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनेगी, ठीक है, तो उसमें कैसे लोग आएंगे? हो सकता है ऐसे लोग आए जो जेम्स हो और आपको एक बड़ी डायरेक्शन दे दें, हो सकता है कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो इंस्टीट्यूशन की गरिमा को खराब कर दें। तो वहां कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह का आप बता रहे हैं ऐसी कोई चुनौती नहीं। कोई और सवाल? एक ये अनिल सर्वा है जी हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं, तो अनिल सर्वा जी अपना अनम्यूट करके आप पूछ हाँ, सकते अनिल जी बताएं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी टीचर्स को सिलेक्शन के लेकर अभी न्यू पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट्स ने मतलब न्यू रूल लेके आए, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू होगा, तो सर मुझे ये आपको ये नहीं लगता है कि उसमें करप्शन ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, मैं इसमें बोलता हूँ। पहली बात तो जो अभी कहा जा रहा है वो इस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। अभी तो इसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकायदा हर प्रदेश में कमेटी बन गई है। वो कमेटी अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है। ये जो निर्णय है ये एडहॉक निर्णय है। और एक सबसे बड़ी बात ये पॉलिसी, अगर ये पॉलिसी लागू हुई ढंग से तो बहुत 100% परिवर्तन होंगे। मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं वो लीगल व्यवस्था के विरुद्ध भी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए और एक इंडियन जुडिशरी सर्विस भी होनी चाहिए इस देश में। इंडियन एजुकेशन सर्विस जो कि यूपीएससी से सिलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी, यूपीएससी ने अपनी गरिमा को बरकरार रखा है, तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं वो केवल एक स्टेट गवर्नमेंट का एक एडहॉक निर्णय है जिसके माध्यम से वो सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, जिस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी को बहुत बड़ी चीज रखा गया है कि एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाएंगे हम। तो अनिल जी, जो ये मामला है ये इस पॉलिसी से रिलेट ज्यादा नहीं कर रहा। और कोई अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा मुझे इंटरेक्शन करके, बच्चों की क्वेरी आई। बिल्कुल सर, रियली किसी तरह से कोई भी इंटरेक्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सबके साथ के लिए। थैंक यू मनोज जी और थैंक यू। कोई और सवाल हो तो बताएं। किसी पार्टिसिपेट को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं वो। संतुष्ट है ये। एक बच्ची ने पूछा है, कुछ पर्सनल मैसेज किया है, जैसे वो कल्चर पर काम करना चाहती हैं, तो अगर वो कल्चर पर काम करना चाहती हैं तो उन्हें मुझे बताना पड़ेगा कि वो मास्टर्स लेवल पर या पीएचडी लेवल पर या रिसर्च लेवल पर कहाँ काम करना चाहती हैं। तो मैंने एक मेल आईडी छोड़ दी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाटएवर आई नो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोला आपने, और जो पार्टिसिपेंट थे वो भी संतुष्ट हुए हैं। उनसे एक बार फिर से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है और शिक्षा के क्षेत्र में एक दिशा और दशा तय करनी है। इसके लिए एक ओपन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए छोड़ा है, जिसकी भी जो विचार हैं वो वहां तक पहुंचा सकते हैं। अभी भी ये 2022 और 23 से लागू करने का प्रावधान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी कमेटी बनी है। और जैसे किशोर सर ने कहा था कि आज जो है आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट लर्निंग की जरूरत है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। जमाना बहुत ही आगे बढ़ रहा है 21वीं सदी में। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं जिस भी विजन पे, उसकी आपका डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, और वो जो आपका विजन है उसके प्रति आप पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होना चाहिए, होगे तभी वो कार्य आप सही से कर पाओगे। ये जो अंतर्राष्ट्रीयकरण की जहां बात आती है, इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कि इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए है, तो इसमें जो कुछ जैसे सुझाव दिए हैं, परामर्श दिए हैं, एक शेयर करना चाहूंगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद के जो वीसी साहब थे, प्रोफेसर दिनेश कुमार, उन्होंने इस पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति में देश में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाया गया ये कदम एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बुनियादी स्तर पर मातृभाषाओं पर जोर देने का मतलब है विद्यार्थियों का 360 डिग्री समग्र विकास की पहल करना। इस नीति को खास बनाता है
क्योंकि इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शिक्षा में लचीलापन व ज्यादा विकल्प उपलब्ध करवाना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करवाया जा रहा है। और नई शिक्षा नीति में कौशल विकास का माध्यम बनाती है, जैसे ये जो फैकल्टी पर फोकस किया गया है कि जो फैकल्टी का है वो चयन किस प्रकार होता है। और ये जो आप और कुछ बिंदु हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण के, जिसने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अहम, जिस पर विचार विमर्श के लिए पॉइंट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि बड़े उत्कृष्ट जो है उत्कृष्टता के उद्देश्य से विश्वसनीय या विश्व स्तरीय जो है शिक्षा को इसमें जोड़ा जाए, बहु विषयक और उदार शिक्षा बनाई जाए। उदार शिक्षा यानी इसमें लचीलापन होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं होनी चाहिए। और बहु विषयक यानी अंतर अनुशासनात्मक शिक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की भी इसमें परिकल्पना की गई है। विनियामक सुधार और सार्वजनिक निजी का विभाजन तोड़ना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि एक ही करिकुलम होगा और एक ही रूल रेगुलेशन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हो या प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो। इस पॉलिसी का एक मुद्दा है ये। गुणवत्ता आश्वासन और पहुंच के साथ विस्तार, सभी तक ये शिक्षा पहुंचे, यानी ये पॉलिसी बनाने से पहले हर क्षेत्र को ध्यान में रखा है। ग्रामीण क्षेत्र को भी ध्यान में रखा है कि एक किसान का बेटा है, वो भी अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तक पहुंचना चाहे या हायर एजुकेशन तक पहुंचना चाहिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए। और मध्यम वर्ग और हाई वर्ग यानी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसी है इसको बनाने का प्रयास किया गया है। रिसर्च इकोसिस्टम यानी नवाचार पर इस पर जोर दिया गया है और रिसर्च पे जोर दिया गया है। रिसर्च जो है वो ठीक है, इंडिया का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी विदेशों की बजाय रिसर्च में यहाँ और काम की अभी जरूरत है। उसके बाद में अगला एक बिंदु है कि फैकल्टी जो है उस पर फोकस करने का जो चयन किया जाता है फैकल्टियों का, उस पर फोकस करने का विचार किया गया है। अभी जो कीर्ति सर ने बताया था कि जो अपने जो शिक्षक हैं हिंदुस्तान में, कोई भी कार्य हो उन्हीं पर जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसे अभी कोरोना आया तो उनका भी सर्वे शिक्षक कर रहे हैं, चुनाव आता है तो वो कार्य भी शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो उसमें जो उनका मुख्य जो विजन होता है, जो फोकस होता है, वो पूरी तरीके से वो नहीं हो पाता है। तो इसको इस बिंदु को भी शामिल किया गया है। गवर्नेंस और नेतृत्व का जो एक बिंदु है वो भी शामिल किया गया है। एक जो बड़ा बिंदु शामिल किया वो शैक्षिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्ता, यानी जो सेल्फ ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल होते हैं उनको भी सेल्फ ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, लेकिन कुछ मानदंड उनके लिए निर्धारित कर दिए जाएंगे ताकि वो गुणवत्ता ला सके। और एक और दिया है अंतर्राष्ट्रीयकरण, जिसपे अपन आज बहुत विस्तार से चर्चा की है। और प्रत्यायन, जो भी विश्वविद्यालय होता है या उसको जो भी कॉलेज होती है उनके लिए एक टीम गठित की हुई होती है कि क्या ये कॉलेज या ये विश्वविद्यालय अपने पूरे मानदंड पूरे करता है या नहीं करता है। और लास्ट में जो सर बता रहे थे, हर शिक्षा का डिजिटलकरण होना चाहिए। और स्वाभाविक सी आज इसी वजह से अपन सब हैं एक मंच पर जुड़े हुए हैं, अपने जो विचार हैं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ऐसा नहीं है, कोई भी जब नया डॉक्यूमेंट सामने आता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें सामने आती हैं। नेगेटिव को भी हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या समस्या आई है, उसका किस प्रकार समाधान किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई विवाद ना रहे उस डॉक्यूमेंट पे। इसके लिए ही ये प्रस्तावित रखी गई है। एक बार फिर से सभी जो हमारे मेहमान हैं, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर किशोर कुमार जी हैं, हमारे जो कोलैबोरेशन में FCRS के CEO डॉक्टर DP सिंह जी हैं, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसी के साथ आज की सभा का समापन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।